Hello, my dear students. Today I am going to explain class 7th Science chapter 5. The name of the chapter is Physical and Chemical Changes. Okay. In this chapter, we will discuss about what are the properties of substance, characteristics of chemical reactions, and the process of crystallization, physical and chemical changes. And next is rusting of iron and its prevention from rusting. Okay, so let's be start. First we will discuss about what is चेंज. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस से पहले व्हाट इज चेंज, कि चेंज क्या है. ओके, सो all the substances in the nature have definite properties. Okay, and properties of a substance are the characteristics that are used to describe that substance. If there is an alteration in any property of a substance due to any external or internal factor, this is known as change. And we see many changes around us, our daily life, us every day, like changes of day to night. हम हमेशा अपनी डेली लाइफ में चेंजेस देखते हैं, जैसे चेंज ऑफ वेदर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स एंड कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, burning, etc. These all are changes. And substance, two types of properties. First property is known as physical property and second is chemical property. So which type of properties, this type of change done by physical property? The properties such as color, size, shape, melting point, boiling point, smell, etc. are said to be physical property. Okay, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी चीज़ें जिसमें कि किसी भी चीज़ के मतलब साइज में, आकार में, उसके स्मेल में, कलर में चेंज हो, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज नोन एज chemical property. The chemical nature of a substance and its behavior toward various chemicals are known as its chemical properties. Depending on the changes in its physical property or the chemical property, we can group changes as in two groups. First is physical changes and second is chemical changes. So which type of change is known as physical change? Okay, after that first we will discuss about one example. Chemical changes. Which type of change is chemical changes? We see always this change in our daily life. Okay, like oxidation reaction. क्या होता है, अगर हम कभी ऐसा होता है कि हम नॉर्मल जो गोल्ड, जैसे एक अगर रिंग पहनते हैं और रिंग वो आर्टिफिशियल हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, तो अगर उसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, नो मैटर दिस रिंग इज सिल्वर, गोल्डन एंड ओके, बट जो क्या होता है कि वो जो सिल्वर कलर है, जो सिल्वर कलर की रिंग है, जो आर्टिफिशियल है, उसको अगर हम पानी में डिप करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका कलर उतर जाता है. ठीक है, और अगर वह रिंग गोल्ड की हो तो क्या उसका कलर नहीं उतरता है. सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज. ओके, दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज एंड व्हाट इज that we are going to discuss about one by one. First is physical change, after that we will discuss about chemical changes. So this type of changes is known as physical changes. A change in the physical property of a substance like state, size, color, shape, etc. is called a physical change. For example, melting of ice, folding of a paper in the shape of a aeroplane, etc. These type of changes is known as physical changes. Physical changes are mostly temporary and reversible. मतलब कि physical changes वो होते हैं जिनको, जो मोस्टली क्या हो सकते हैं, रिवर्सेबल. मतलब रिवर्सेबल मीन्स ये होता है कि फिर से वो दोबारा
मतलब रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स द ओरिजिनल सब्सटेंस मे बी ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द कंडीशन दैट ब्रिंग अबाउट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टेड आइस कैन बी फोल्डेड बैक इनटू सॉलिड आइस। जो मेल्टेड आइस है, जो बर्फ का टुकड़ा होता है, अगर वो गल जाएगा तो गलने के बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर से वो सॉलिड, फिर से वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज फिजिकल चेंजेस, जिसको हम दोबारा फिर से वापस उसमें पा सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट we will discuss about chemical changes. This type of changes is known as chemical changes. When one or more new substance with entirely new properties are formed by reaction of two or more substance. Okay, जब हम क्या करते हैं, टू और मोर सब्सटेंस को एक साथ रिएक्ट कराते हैं, सो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंजेस। ओके, during chemical changes, chemical reactions take place. The substance taking part in the chemical reaction are called its, and the substance formed due to these reactions are called products. Okay, these changes are mostly permanent and irreversible. Irreversible का मतलब होता है कि ये वापस से कभी भी सेम प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सकते हैं। लाइक सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ अ पेपर, कर्डिंग ऑफ मिल्क इन विच कर्ड इज फॉर्म्ड। बर्निंग ऑफ पेपर, अगर हम पेपर को जला दें या पेपर को अगर फाड़ दें, टीयर कर दें कॉपी से, तो क्या हम वापस से उसको उस आकार में पा सकते हैं उस तरह से? नहीं। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज केमिकल चेंज। एंड आफ्टर दैट कर्डिंग ऑफ मिल्क, अगर हम दूध से दही को बनाते हैं तो क्या दही से फिर हम दूध बना सकते हैं? नहीं। सो दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज ऑल्सो नोन एज इरिवर्सिबल। ओके, इरिवर्सिबल मीन्स होता है कि जिसको हम वापस से चेंज, रिवर्स मतलब फिर से उस फॉर्म में ना ला सकें। ओके, आफ्टर दैट सम अदर चेंजेस, एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस आर रस्टिंग ऑफ आयरन, cooking of food, digestion of food, etc. These all are chemical changes. Rusting of iron means रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से मतलब है, रस्ट का मतलब कोई भी चीज़ खराब होना। जैसे कि कोई भी लोहे की चीज़ देखे होंगे, अगर हम लोहे का कुछ भी रख देते हैं अगर छत पे या फिर कहीं ऐसी जगह पे, खुले जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप लगे या बारिश हो, तो उससे क्या होता है, आयरन के ऊपर एक परत जम जाती है। ठीक है, आयरन के ऊपर एक परत जम जाती है। और फिर जैसे जैसे क्या होता है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होती जाती है। तो दिस टाइप ऑफ चेंज मतलब इस टाइप चेंज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। ठीक है, और रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब कि जैसे कि आयरन यहाँ पे क्या, लोहा एक तरह से पूरी तरह से रस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है। ठीक है, कैसे, धूप से पानी से भीग के उस पे एक देखा होगा जंग टाइप की लग जाती है। सो दिस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, दैट माई नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज prevention of rusting. How to prevent of rusting? First is by applying paint on iron objects so that can be come in contact with oxygen in the environment. ठीक है, उस पर क्या कर सकते हैं, जो भी आयरन है उसको रस्ट होने से बचाने के लिए उस पर हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको उस पर हम पेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो ऑक्सीजन और उसके कांटेक्ट में आए और इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा खुले बारिश में उसको भीगने ना दे। ठीक है, ऐसे अप्लाई रस्ट होने से बचा सकते हैं। सेकेंड इज अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक, ठीक है, और क्रोमियम मेटल्स ऑन द आयरन। ओके, उस पर क्या कर सकते हैं, जिंक का एक लेयर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि पेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेयर ऑफ जिंक, एंड मेल्ट ऑन द आयरन। इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन। ओके, गैल्वनाइजेशन। एंड आफ्टर दैट लास्ट is crystallization. What is known as crystallization? It is the process of obtaining crystal of a pure substance from its solution. Okay, and for example, we can obtain the crystal of copper sulfate by boiling copper sulfate solution. Okay,
So now clear what are this type of changes and how to prevent of rusting. कैसे हम वो आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं. What are the preventions? Okay. So students, my lesson is completed and hope you all are understood. Okay. So bye students. Hello.